मंडपम में इंडिया हेल्थ एग्जीबिशन 2025 के दूसरे संस्करण की भव्य शुरुआत हुई। इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित यह 3 दिवसीय आयोजन 11 से 13 जुलाई तक चलेगा। यह कार्यक्रम देश में हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर की तेजी से बढ़ती जरूरतों और संभावनाओं को दर्शाता है। इस मेडिकल सेक्टर को ऐसे आयोजनों से गति मिलेगी। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ पंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। The Legacy is the world's largest show, Arab Health, that we do as our organizers in Dubai, which is the world's largest show. We have tried to launch this show, create that similar momentum in India by launching India Health last year, and we launched in Dwarka last year and have brought it to this heart of Delhi in Pragati Maidan. This year we are having over 300 brands exhibiting, and this is a show where the entire healthcare sector is there. You'll see anything and everything related to the healthcare sector, be it you'll see the healthcare infrastructure, the innovations, technologies that are happening over there, any healthcare product that is needed, diagnostics, everything is being showcased over here. Beyond that, we also have 2 parallel tracks of conferences that are happening. One is Global MedTech Connect, which is more on our जिस रफ्तार से इंपोर्ट कम हो रहा है और उससे भी ज्यादा जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रही है। द पेस एट विच आवर इंडिजिनियस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। एक रेलवे स्टेशन पर आप वंदे भारत ट्रेन देखते हैं, उस पर लिखा होता है मेड इन इंडिया, बट किसी हॉस्पिटल पे आप नहीं देखते हैं मेड इन इंडिया, क्योंकि हम लोग ब्रॉडली इंपोर्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी हैं। बट जिस रफ्तार से इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, द वे वी आर ग्रोइंग इन सेल्फ प्रोडक्शन, बाय 2032-33 we will be an import neutral country. Our import will come down to less than 50%, which is the brightest spot in our radar for next 7 to 8 years. देखिए, डॉक्टर शर्मा ने जो बात बताई आपको अबाउट द मेडिकल टेक्नोलॉजी, आई विल ऐड वन मोर फैक्टर इनटू दिस. You know, very few people are aware about that India's life expectancy at the time of independence was 37 years. आपको यकीन है कि हम लोग 37 years थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज जो है 73 years हो गई है. ये कैसे हुआ है? ये हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी के आने से, डायग्नोस्टिक के इम्प्रूवमेंट से, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन के बढ़ने से. ये सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं. लेकिन ये मेडिकल टेक्नोलॉजी, जैसे शर्मा जी ने आपको बताया, हम लोग 66% डिपेंडेंट थे, सॉरी 96%. और अभी भी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे डिफेंस के ऊपर बहुत जोर डाला है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर. नाउ नेक्स्ट फोकस इज कमिंग ऑन indigenization of the medical technology. Hi, my name is Samantha Moulding. We're launching our award-winning skincare products in India this year. We have Clinisoothe, which is a skin purifier for daily skin health use. We're award-winning for acne, rosacea, dermatitis, sensitive skin. And we also have a professional product for dermatology clinics with a foot care, skin care. So we have foot care products for foot hygiene. We have skin care products for skin hygiene. This is pre-procedure for cleansing the skin and cleaning the skin, and aftercare as well. And we have some mouthwash products to keep the mouth clean, clear and hygienic. Thank you. Thank you. End of the August, we launched this product in India, but before that, we already have selling product, the Studex Clear Piercing product in India last 14 years. So this is the new product we are launched in the show, the medical show. So by the end of the August, this product is available in India. हेल्थ मेले में आए हैं यहाँ पर. The health show है. This is the first time we participate in the show. But yes, the good crowd is there. We see that the good number of people are coming, and different people are coming from Mumbai and some other states. So I think it's a very good experience for this show. This is the first day. So on the basis of the first day, I share my feedback to you. Right? तो हेल्थ सेक्टर में हम जहाँ पर देखते जाएं कि 75% हम ग्रोथ करते हैं एक्सपोर्ट में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में. तो कहीं ना कहीं जो हम नई बात करें तो अमेरिका जो टैरिफ का मामला आ रहा है, उस पर हम क्या देखते हैं कि कितना हमें इफेक्ट पड़ेगा इस बात का?
टैरिफ का तो अभी बातें हो रही है, सो वी डोंट नो कि क्या होगा। जैसे आज देखा है कल कनाडा पे 35% ड्यूटी लगाई है, सो आज इंडिया की बात हो रही है, दे आर टॉकिंग फॉर मिनी डील नाउ, सो वी आर होपिंग दैट विल बी फेवरेबल फॉर दिस सेक्टर एंड एक्सपोर्ट के हिसाब से आई थिंक हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा, बिकॉज आई थिंक इंडिया के फार्मेसी हो या मेडिकल, देयर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, सो आई थिंक वी विल हैव सम बेनिफिट, वी आर सीइंग एज अ इंडस्ट्री, वी आर होपिंग दैट। ऐसी इंडस्ट्रीज जब हम लगाते हैं, हाँ एक्सपोर्ट का इम्पोर्ट या B2B होता है, तो हम ये देखते हैं ग्रोथ क्या रहती है, ग्रोथ रेट होती है, तो रहता क्या है हर साल, क्योंकि लगातार साल में 3 बार तो ये सब चीजें होती है, तो क्या ग्रोथ रहता तो ग्रोथ इज कम से कम ये इंडस्ट्री में 15 से 20% ग्रोथ कहीं नहीं गया। आई थिंक ये तो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रहा है, जैसे अपना ये अवेयरनेस बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट का भी ये बहुत हो रहा है ये इंडस्ट्री से। आई थिंक ये ग्रोथ इंडस्ट्री में 15-20% से कहीं पे नहीं गया आगे ग्रोथ। है? नया क्या आया है यहाँ पर, इस बार ये देखते हैं हम सीमेंट में, तो नया क्या है? सो नए ट्रेंड्स में आप देखेंगे तो अभी नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर डिजिटल वेरिएबल डिवाइसेस, एआई रिलेटेड सॉल्यूशंस है, नए प्रोडक्ट्स है, जो द क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैव चेंज, सो वो सारे नए इनोवेशंस में आपको जैसे डिजिटल वेरिएबल डिवाइसेस एक नया ट्रेंड जो आ रहा है, जिससे आपका सब मेजर हो सकता है, आपका बीपी से लेके आपके हार्ट रेट से लेके एवरीथिंग दिस इज कमिंग, इसमें एआई ड्रिवन है, जिससे आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन भी मिल सके।